Good morning church and welcome to our online Sunday service. आज के इस नए दिन और नई करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. We would also like to thank you for tuning in week after week. May God bless you. I would like to extend a special welcome to those of you who are watching us for the first time. Do comment and let us know where you are joining us from. We also encourage you to invite your loved ones to watch the service with us today. The psalmist says in chapter 145 verses 5 to 7, I will meditate on the glorious splendor of your majesty and on your wondrous works. Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. So get excited to worship Jesus. Today's worship will be led by the lovely ladies of our church. So sit back and get ready to receive the amazing things God has in store for you. Let's start with the 1-minute opening prayer. और आपके परिवार में से कोई भी एक सदस्य इसमें आपकी अगुवाई कर सकता है. Good morning, praise the Lord, and welcome to a time of praise and worship where we all together in our hearts, in our spirit, come together and worship our Savior, Lord Jesus Christ. Even though we are all at our homes, but I believe we are connected in one spirit as a family of God. And this morning, right from your homes, as we worship our Savior, God is going to touch you. He is going to speak to you. He is going to touch your heart and bring comfort to you. And I just want to read to you from the scripture, the book of Genesis, chapter 12, which says from the verse 2 that I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. This morning, your life, your house, your home will be a blessing to many others. This is what we praise. This is what we pray for. And this morning, even as we go into a time of worship, come believe that you will be blessed, you will be touched, and through you, many others will be blessed. So come, let's worship the Lord, praise His holy name, and get excited in the presence of our Lord and Savior Jesus Christ. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Yes, Lord, we thank you for your favor, Lord. Thank you for your blessing, Lord. It's always upon us, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Presence is always with us, and for your blessing, O Lord. The song says, "Do it again." Our God is a God who can perform miracles after miracles. If He has done something in someone's life, He can do the same thing in your life, even greater things in your life. The only thing that we need to do is believe, because our God is a God who is faithful, who is true to His promises. Everyone can forsake us, everyone can forleave us, but our God is the God who is always and always going to be there, and He is the one that will not fail us, come what may. He is the God that today, no matter what your circumstances, tomorrow it will be a different experience. Tomorrow will be a new day. Tomorrow will be a new blessing in your life, because He is a faithful God, because He is a promise keeper, because He is the one that will never leave you and He will never fail you. So let's sing this song and just believe that God is going to do miracles in your life. Let's worship. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Oh, hallelujah, Lord, you've never failed us. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never
still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. You promised to stand. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. चर्च, क्यों ना इस समय जब हम इस गीत को गाते, क्यों ना परमेश्वर को महिमा दे। जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं। हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, इतने लोग को हम जानते हैं, लेकिन सच में यीशु जैसा कोई नहीं। क्यों ना इस गीत को गाए, तुम सा कोई नहीं, यीशु तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं।
Church, as we continue to praise His holy name, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, और जैसा वचन कहता है कि प्रभु तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, जब तेरा प्रेजेंस यहाँ पर बहुतायत से है खुदा, जब तू यहाँ बहुतायत से है खुदा, तो हम हर एक बात दिल से करने पाए, हर एक चीज़ों को दिल से करने पाए, ऐसा हमारी प्रार्थना है। इसलिए इस गीत को हम गाते हैं और तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और कहते हैं हर एक चीज़ हम दिल से करते हैं। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूँ, आराधना करूँ दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया
Praise the Lord. I want to thank God Almighty for this beautiful time He has given us to worship Him in our homes. Now it's the time for tithes and offering. When we read Genesis chapter 26 verse 1 onwards, जब हम उत्पत्ति 26 अध्याय 1 पद से 6 पद तक पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसहाक जिस देश में रह रहा था वहाँ पे अकाल पड़ा और वो उस देश से निकलकर गरार को आया। जब वो गरार को आया तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा कि इसहाक तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा। और इसहाक जो था वो गरार में रहने लगा। फिर हम जब 12 और 13 पद पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसहाक ने उस गरार देश में बीज बोया और उसी वर्ष उसने वहाँ पे 100 गुनी फसल को काटा और वो धनी हो गया और वो अत्यंत धनी होता गया और परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से आशीष दी। तो मेरे प्रियो, आज इस समय जब हम इस पैंडमिक के कारण एक अकाल की स्थिति में हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम गरार में आए। तो जब आज हम उसकी उपस्थिति में आए हैं तो हम अपने बीज को विश्वास के साथ इसहाक के समान बोए और परमेश्वर आपको इसी वर्ष में इसहाक के समान 100 गुना आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी इब्राहिम की संतान हैं। तो हम अपने बीज को इस समय परमेश्वर के राज में बोएं। आप बीज बोने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड चुन सकते हैं। ऑफलाइन बोने के लिए आप अपने दान दशमांश घर पे इकट्ठा करें और उसको चर्च ऑफिस में जाके दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जाने के लिए आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपको इसी वर्ष में कैसे आशीष देगा, क्योंकि सिर्फ 2 महीने ही इस वर्ष के बाकी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर 6 दिन में सारी सृष्टि को और आदम को बना सकता है, वो परमेश्वर 2 महीने में आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है। आपकी कोई भी आवश्यकताएं क्यों ना हो, विश्वास के साथ परमेश्वर के राज में बोए। Always remember this, all you need is in your seed. जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं वो आपके बीज में हैं। आप परमेश्वर के राज में बीज बोए और धार्मिकता की फसल को 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 10 पद के अनुसार आप अपनी फसल को निश्चय काटने पाएंगे। सो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, इस समय में परमेश्वर जब हम आपके राज में अपने बीज को बोते हैं परमेश्वर, विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार आपने इब्राहिम को आशीष दी और 100 गुना परमेश्वर उसकी फसल को बढ़ाया, इसी प्रकार परमेश्वर आज जो बच्चे आपके राज में बीज को बो रहे हैं परमेश्वर, इसी वचन के अनुसार परमेश्वर वो इसी वर्ष में परमेश्वर अपनी बीज को की फसल को 100 गुना काटने पाएंगे। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन इफिसियों 3:20 के अनुसार कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार जो तुम में कार्य करती है कि तुम्हारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है। हाँ प्रभु, आप हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करने वाले हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे बीज को परमेश्वर आशीषित किया है और इसकी फसल को परमेश्वर हम आने वाले दिनों में 100 गुनी काटने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आया है तू मेरे करीब, मुझको तू थामा और चंगाई दी, मन में मेरे लाई रोशनी। अकेला था मैं, भयभीत था, तूने छुआ मुझको, ये क्या हुआ। आशा जगी, राह दिखी, जैसे मिली एक नई जिंदगी। ना कोई डर है मुझे अभी, जो तू मेरे साथ है।
पर हर गम को मेरे सोचा न था मैंने कभी पाऊंगा मैं इतनी खुशी। आशा जगी राह दिखी जैसे मिली एक नई जिंदगी। ना कोई डर है मुझे अभी जो तू मेरे साथ है खुदा। ना कोई डर है मुझे अभी जो तू मेरे साथ है खुदा। ना कोई डर है मुझे अभी जो तू मेरे साथ है खुदा। ना कोई डर है मुझे अभी जो तू मेरे साथ है खुदा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आपका स्वागत है हार्वेस्ट चर्च ऑनलाइन संडे सर्विस का। हम परमेश्वर का धन्यवाद, वो जीवित परमेश्वर है, आज हमारे बीच में वो विराजमान है। उसका वचन भी जीवित है जिसके द्वारा हमसे वो प्रतिदिन बोलता है और बातचीत करता है। आज के ओपनर के लिए शैरन का धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी रीति से आपने किया है ना। क्वायर का धन्यवाद, आज तो ऑल लेडीज क्वायर, वाओ, वी सैल्यूट द लेडीज ऑफ आवर चर्च ना। बड़े गिफ्टेड, अनॉइंटेड, टैलेंटेड लेडीज प्रभु ने चर्च में भी दिया है ना। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ऑल। दिस इज़ अ ग्रोइंग चर्च। स्पिरिचुअली ग्रोथ होना हमें बहुत ज़रूरी है ना, और ये हम देख रहे हैं आपके जीवन में। परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष दे। आज के संदेश को हम आगे शुरू करेंगे। एंड कैरेक्टर ऑफ गॉड, कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र, और उसमें से एक भाग देखेंगे फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता या क्षमा करना ना। ये वाला भाग भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 32 ऑनवर्ड्स, मत्ती 18:32 आगे। देन हिज लॉर्ड after that he had called him said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Verse 34, and his Lord was wroth and delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. Verse 35, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. हिंदी में पढ़ने के लिए मैंने एंजल से रिक्वेस्ट किया। एंजल प्लीज आप पढ़िएगा, थैंक यू। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की
वैसा ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथों में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यस आज का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता या क्षमा करना। और ये परमेश्वर का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इनफैक्ट देखा जाएगा हमारी ये क्रिश्चियन लाइफ की जर्नी ना वहाँ से उस वाक्य से शुरू होती है जहाँ यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं ना। ये यीशु मसीह की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसको सताया गया, मारा गया, क्रूस पर लटका दिया गया, पर उसमें से क्षमा निकली ना, क्षमा निकली, हे पिता इन्हें तो माफ कर। मैं तो ये सोच रहा था अगर यीशु मसीह के बजाय दूसरा कोई व्यक्ति होता ना, उल्टी प्रार्थना कर दिया होता ना, हे पिता इनको तू दंड दे देना है, इनको कभी मत छोड़ना, और ऐसी कुछ प्रार्थना किया होता तो मैं नहीं सोचता आज आप और मैं यहाँ बैठे होते। फॉरगिवनेस इज अ कैरेक्टर ऑफ गॉड ना। ये क्रिश्चियन फेथ का ये फाउंडेशन है ना, फॉरगिवनेस। अब ये सब्जेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस मैं जानता हूँ ईजी नहीं है ना। इस फॉरगिवनेस के लिए कई बार आपको कुछ बलिदान, कुर्बान करना पड़ता है उस व्यक्ति के लिए जो उसे क्षमा के लायक भी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो आपकी क्षमा का, कुर्बानी का कुछ परवाह ही नहीं करता है ना, उस व्यक्ति के लिए ये आपने जो कुर्बानी करी है पर अगला तो उसका मस्करी कर रहा, ठट्टा कर रहा है, वो तो कुछ भी उसका महत्व नहीं जानता है। कुछ क्रूस की कथा ऐसी है ना, हम सब यीशु मसीह के दुश्मन थे, हम सब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम प्रभु से दूर थे, अलग थे, पर फिर भी उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर भेजा और यीशु मसीह ने ये प्रेयर कर दिया, हे पिता इन्हें तो माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं ना। देखिएगा, किसी को क्षमा करना ये शायद बहुत कठिन बात लगती है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो लायक नहीं है। इसलिए कठिन लगता है क्योंकि ये मनुष्य के स्वभाव कभी नहीं बोलता क्षमा करो। मनुष्य के स्वभाव रिवेंज मांगता, रेट्रीब्यूशन मांगता है, बदला मांगता है ना, अगले को दंड देना चाहता, अगले को लेसन सिखाना चाहता। पर हम मनुष्य के स्वभाव में क्यों फंसे रहेंगे ना। इनफैक्ट बाइबल हमको सिखाती है कि हमको ईश्वरीय स्वभाव को धारण करना। 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4 हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। यस, पत्रस बता रहा है कि अब ईश्वरीय स्वभाव को हम धारण करें ना। सो ये एक चैलेंज होगा मेरे क्रिश्चियन यात्रा जो क्षमा से शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके मैं क्षमा को और करते जाऊं और सीखते जाऊं, उसमें बढ़ते जाऊं। हमको वो मनुष्य स्वभाव को उतार कर ईश्वरीय स्वभाव को पहनना पड़ेगा। पौलुस ने ये भी कह दिया, 1 करंती 15 चैप्टर 49 वचन में कहता है, हिंदी में पढ़ देंगे। और जैसा हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। राइट, हम ना वो ईश्वरीय स्वरूप को हम धारण करेंगे ना। जो वर्ड इमेज आया, वी शैल बेयर द इमेज ऑफ द हेवनली ना, जो वर्ड इमेज आया है वो ओरिजिनल हिब्रू भाषा में इसको तस्लीम बोलते हैं। ये वर्ड वहाँ इस्तेमाल कर दिया गया जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और ये कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, समानता, तस्लीम में बनाएंगे। वो वर्ड तस्लीम का मतलब होता है सेम टू सेम, डिट्टो, एग्जैक्ट कॉपी। जैसे कई बार फोटो कॉपी से हम कॉपीज निकालते हैं, हमको ओरिजिनल कौन सा है और कॉपी कौन सा समझ नहीं पड़ता। ये परमेश्वर की मनसा, इरादा ऑल थ्रू आउट द बाइबल थी, मनुष्य को बनाएंगे अपने स्वरूप में। सो परमेश्वर चाहता है कैरेक्टर
ऑफ गॉड, मसीह का चरित्र को हम धारण करें अपने लाइफ, ईश्वरीय स्वभाव को हम धारण करें। ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने के लिए हमको मनुष्य का स्वभाव, संसार का स्वभाव को उतारना जरूरी होगा। पौलुस ने कहा इफिशियंस चैप्टर 4 में वर्स 22 से 24, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यस, पौलुस कहता है कि हम वो मनुष्य के स्वभाव को उतार डालो ना, और ये परमेश्वर के स्वभाव, न्यू मैन, पुट ऑन द न्यू मैन ना, ईश्वरीय स्वभाव को हम लोग पहन ले ना। ये एक चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ नया पहनने के लिए पुराना उतारना पड़ता है ना। क्या कभी आपने देखा कोई व्यक्ति पुराने शर्ट के ऊपर में ही नया शर्ट पहन लिया? कितना क्लमजी, स्टूपिड, इडियट दिखेगा वो। अफसोस की बात है, बहुत सारे बार मसीह लोग, क्रिश्चियन बैप्टाइज्ड बिलीवर्स, अभी तक पुराना नेचर, स्वभाव उतारा नहीं है और उसके ऊपर में नया ईश्वरीय स्वभाव पहनने की कोशिश है। हालेलुया भी बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, चर्च भी जाते हैं, परंतु पुराना स्वभाव को उतारा नहीं। ऐसा करेंगे तो दुर्गंध आ जाएगी, बदबू आ जाएगी, परमेश्वर के आगे में हमारा स्तुति रूपी बलिदान ग्रहण नहीं होगा ना। बाइबल भी कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 17, हिंदी में पढ़ देंगे, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है। यस, यीशु मसीह ने भी कहा ना, वो नया दाखरस नई मशके में भरते हैं हम, तब जाके दोनों प्रिजर्व हो सकते हैं ना। न्यू वाइन इन न्यू वाइन स्किन, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए पुराना स्वभाव उतारना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये वाला सब्जेक्ट आज का इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ह्यूमन नेचर रिवेंज चाहता है। ह्यूमन नेचर हमारे दुश्मनों के साथ उसका बुरा हो जाए, उसके हाथ पैर टूट जाए। ह्यूमन नेचर डिमांड करता है कि मेरा दुश्मन घुटनों पर आ जाए, मेरे आगे आके हाथ जोड़े, मुझसे माफ़ी और क्षमा की भीख मांगे, तब मैं उसको क्षमा कर दूंगा। ये तो सब मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य के स्वभाव बुरा चाहता है दुश्मनों के साथ में। एक बार बाइबल में लिखा भी है, लूक चैप्टर 9 वर्सेस 54 टू 56, चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, इनका दिल बहुत बिगड़ गया। पढ़ेंगे वचन, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव चले गए। और ये चेले, क्योंकि समरी के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, इनका खून खौल गया होगा। इन्होंने यीशु मसीह से ये विनती कर रहे, अभी इजाज़त दे दे, अभी हम आग बरसा करके एलिया ओल्ड टेस्टमेंट में जैसा उसने नाश कर दिया, हम इसको नाश कर देंगे। पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह कहता, तुम नहीं जानते तुम में कौन सी आत्मा है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र नाश करने को नहीं आया, बचाने को आया, बचाने को आया ना। इसलिए जब मेरे साथ कुछ बुरा कोई करता है तो मुझ में से रिएक्शन कैसा होता है? कौन सी आत्मा कार्य करना शुरू करती है? क्या बदले वाली आत्मा? क्या बुरी बोलने वाली आत्मा? अगले ने जैसा बोला मैं भी उसके साथ वैसा ही बोलता हूं, बकता हूं, गाली गलौज चालू कर? या क्रिस की आत्मा, क्षमा करने वाली आत्मा, माफ करने वाली आत्मा ना? ये बहुत एक कठिन बात होती है कि अगले ने मेरे साथ बुरा किया और मैं उस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं करूं ना, कुछ बुरा भी नहीं बोलूं ना। ये यीशु मसीह ने ऐसे ही किया।
इसलिए इस वचन में हमने पढ़ा ना, यीशु मसीह उस नगर से दूसरे नगर चला गया ना, वो नगर का कुछ भी बुरा भी नहीं कहा ना, यीशु मसीह बचाने के लिए आया। इसलिए ना क्षमा के लेसन में ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हाउ यू रिएक्ट। बुरे तो कर दिया जाएगा आपके विरोध में ना, नुकसान तो किया जाता है ना, कई बार हमको भड़काने के लिए ना, परंतु हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो बातें बहुत ज़रूरी है। अगला व्यक्ति को क्षमा की ज़रूरत है या नहीं है वो महत्व की बात नहीं है, आप कैसे रिस्पॉन्ड, आप कैसे एक्शन ले रहे हैं वो स्वर्ग देख रहा है ना आपके साथ में, वो स्वर्ग देख रहा है ना। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी क्षमा के लायक नहीं है, सब पर ना दंड आ जाना चाहिए। बुरे लोगों के ऊपर में परमेश्वर उनके साथ बुरा कर दे ना, पर ये तो मनुष्य के स्वभाव है। गॉड का स्वभाव देखेंगे, प्रभु नहीं चाहता है कोई भी जन नाश होने पाए ना। जस्टिस ना ये मनुष्य का स्वभाव, फॉरगिवनेस गॉड का स्वभाव। जस्टिस इज ह्यूमन, फॉरगिवनेस इज डिवाइन ना। इसलिए जरूरी है हम ईश्वरीय स्वभाव को हम धारण करें ना। ये तो मैं कहूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ना ऑफ गॉड गिवन टू मैनकाइंड टू फॉरगिव वन अनदर, एक दूसरे को क्षमा करना। ये तो गॉड का एसेंस है, उसकी खासियत है कि वो क्षमा कर देता। और जब हम भी ऐसा करते हैं ना तो हमें ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर से कार्य करता है। इसलिए मनुष्य के स्वभाव में हम लटके मत रहे ना। होगा आपके साथ बुरा किया गया होगा, परंतु आप ईश्वरीय स्वभाव को धारण करें। यीशु मसीह ने कह दिया ना, इस बात से आनंद करना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन के पुस्तकों में लिखा। और वो कार्य इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा कर दिया। हम उसके विरोधी थे, हम उसके दुश्मन थे, फिर भी उसने बाप से प्रार्थना करता है मेरे पापों को क्षमा कर दे। इसलिए आज का ये सबक हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी। और जो पैरेबल दृष्टांत स्टार्टिंग में पढ़ा मत्ती 18 चैप्टर में 21 कलम से 35 कलम तक पूरा पाया जाता है। पूरा नहीं पढ़ रहे हम लोग, पर इस पर थोड़ा मैं ध्यान देना चाहता हूँ, बिकॉज 27 वचन में क्या हुआ और 34 वचन में क्या हुआ उस पर आप ध्यान देंगे। 27 वचन में ना बाइबल कहती है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। और 34 वचन में क्या हुआ सुनिए ना, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथों में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर ना दे तब तक उनके हाथ में वो रहे ना। एक व्यक्ति जिसको क्षमा एक स्टेज पर मिल गई थी, बाद में जाकर के उसने कुछ गलत कार्य किया तो उस पर दंड आ गया, उस पर दंड आ गया। ये दृष्टांत है, यीशु मसीह इसके द्वारा कुछ बता रहा है ना कि यहाँ पर एक व्यक्ति को क्षमा तो मिली है, पर आगे उसने क्या रिएक्शन किया, उस क्षमा के साथ में क्या किया ना। और उसने क्योंकि गलती किया तो इसको वापस रिवोक हो गया, फिर से उस पर दंड आ पहुंचा। ये पैरेबल कुछ बोल रहा है हमको, हम ध्यानपूर्वक सुने कि क्षमा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ एंड लिविंग है। इस क्षमा को व्यर्थ मत समझना, तुच्छ मत जानना, हल्का मत जानना। जो क्षमा यीशु मसीह ने हमारे अपराध और पापों को क्षमा कर दिया। इनफैक्ट ये जो दृष्टांत है यीशु मसीह ने बोला है उस समय जब पतरस ने क्वेश्चन पूछा कितने बार क्षमा करूं, क्या 7 टाइम क्षमा करूं काफ़ी है? और यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया 7 बार नहीं वरन 7 बार के 70 गुना तक माफ कर दे। 70 टाइम्स 7 मीन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्षमा करते जाना ना। मतलब आप और मैं को कितना क्षमा के सामर्थ्य में और ग्रेजुएट और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। ये दृष्टांत है, पर इसमें भारी भेद की बातें यीशु मसीह बता रहा है। अब हम हिंदी में पढ़ देंगे मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 35 कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूँगा। यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बड़ी भेद की बातें जो पृथ्वी के आरंभ से गुप्त थी
सो फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल सीखने के लिए ये दृष्टांत हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, कि जो क्षमा प्रभु ने हम पर किया है वो कितनी महत्व की होती है ना। यहाँ पर जिस दृष्टांत में यीशु मसीह इंटेंशनली दो व्यक्तियों के बारे में बता रहा है और जो कर्ज उन्होंने लिया था जो वो नहीं चुका सके उसके बारे में दिया गया ना। यहाँ पर हम सीखेंगे इस पैराबल में कि जो क्राइम कमिट किया गया, जो अपराध और पाप इस व्यक्ति ने किया, जो उसके 24 कलम में लिखा है कि 10,000 तोड़े का कर्ज था ना। ये फिगर्स को थोड़ा ध्यान दे, मैं आगे समझाऊंगा। 10,000 तोड़े का कर्ज था ना, परंतु उस व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, वर्स 25 में लिखा है जब उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था उसके पास में ना, उसको चुकाने के लिए उस पर दंड आ पहुंचा। वर्स 25 में लिखा है उस व्यक्ति को, उसके पत्नी, लड़के, बालकों को, सब कुछ को बेच दो बोल दिया गया ना, ताकि जब तक कि वो कर्ज चुका ना दे ना। मतलब ये तो आजीवन के लिए उसका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉयड हो गया था ना। बहुत बड़ा कर्ज था, उसके पास कुछ भी नहीं था और इस पर दंड आ पहुंचा था ना। ये तो पूरा फैमिली नष्ट होने वाला। पर वर्स 26 ने पूरा सीन बदल दिया। वर्स 26 आप हिंदी में पढ़ देंगे। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। यस ना, ये दास राजा के सामने में गिर करके प्रणाम किया और कहता है, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा ना। ये एक्ट ऑफ रिपेंटेंस बता रहा है, क्षमा के लिए बैक कर रहा है, मर्सी प्ली ये राजा के आगे में रखा है। एंड वर्स 27 बताता है तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज क्षमा कर दिया। यहाँ पर 10,000 तोड़े का कर्ज तो क्षमा कर दिया, पर इसके ऊपर में एक कर्ज परमेश्वर ने डाल दिया, उस राजा ने डाल दिया कि एक्सपेक्टेड था वो दूसरों को जाकर के क्षमा कर देगा। माइंड यू, फॉरगिवनेस कम्स विथ अ प्राइस। एक दाम परमेश्वर मांग रहा है और दाम ये है कि आप दूसरों को क्षमा कर। आपको क्षमा मिली ना और दूसरों को क्षमा आप कर दे। पर इस पैरेबल में क्या होता है, मत्ती 18 चैप्टर 28 से 30 कलम हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे आप। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक खर्च को भर न दे तब तक वहीं रहे। जी ना, इस व्यक्ति ने जाकर दूसरे नौकर को पकड़ा जिसने 100 दिनार का कर्ज लिया था ना, और वो कुछ भी नहीं था उसके पास पेमेंट करने। उसने बेग किया, प्ली, मर्सी मांगा, परंतु ये ऑफिसर ने उसको क्षमा नहीं किया, परंतु उसके घर परिवार को सबको को जेल में बंद कर दिया गया। जब मालिक को पता चला है ना, मालिक ने वापस बुलाया इस दास को ना और इसको हाथ पैर बांध करके जेल में बंद कर देता है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, वो जो 10,000 तोड़े फर्स्ट वाला जो ऑफिसर था जो राजा से लोन लिया था, उसने 10,000 तोड़े का कर्ज। सेकेंड वाला वो नौकर था, उसने 100 दिनार। मैं 10,000 तोड़े और 100 दिनार का थोड़ा आपके आगे में बताना चाहता हूँ ना। ये इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन मैं निकाला हूँ और ये आज के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के अनुसार 10,000 तोड़े, माय गुडनेस, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1,07,000 करोड़। 1,07,000 करोड़ का लोन था और 100 दिनार लगभग 17.5 लाख का लोन था ना। मतलब उस राजा ने इस ऑफिसर के लिए 1 लाख करोड़ का लोन यूं ही माफ कर दिया और वो जाकर 17 लाख का लोन किसी और के साथ पर था ना,
उसे माफ नहीं किया। यीशु मसीह ये जो फिगर्स ले रहा है इंटेंशनल है इस दृष्टांत के द्वारा ना। ये जो 1 लाख करोड़ का जो लोन है इसके ऊपर में ना, ये व्यक्ति तो कभी नहीं जीवन भर नहीं चुका सकता था। जो आपके और मेरे ऊपर में पाप का जो कर्ज था, हम तो कभी अपने कर्मों के द्वारा कभी नहीं चुका सकते। इनफैक्ट जॉन चैप्टर 6 में वर्स 29-30 में ना, कुछ लोग जब यीशु मसीह के पास आए और कहते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, और यीशु मसीह ने कहा ना, यही कार्य है कि जिसको परमेश्वर ने भेजा उस पर तू विश्वास कर ले। गॉड ने और कुछ भी नहीं मांगा, केवल ना यीशु मसीह पर विश्वास कर ले, यीशु मसीह पर विश्वास। हम तो ये पाप का कर्ज जो हमारे ऊपर में था ना, ये तो हम कभी नहीं मिटा सकते, और इसका दंड था हमारे ऊपर में, वो है मृत्यु, नरक, युगानुयुग की आग में डाल दिया जाएगा ना, जीवन भर तड़पते रहेंगे वहां पर ना। परंतु यीशु मसीह के पास आप और मैं आए, और यीशु मसीह ने हमारे यूं ही पापों को क्षमा कर दिया। मन फिराया, हमने बपतिस्मा लिया, मेरे सारे पाप धुल गए। मैं तो सोच रहा हमको कभी भी इसका नजरअंदाज नहीं हो पाएगा कि कितना बड़ा दाम था मेरे ऊपर में, जो यीशु मसीह ने यूं ही माफ कर दिया, जिसका दाम यीशु मसीह को खुद स्वयं देना था ना। अब यीशु मसीह ने जब हमें क्षमा कर दिया है तो आगे कुछ मांग नहीं रखता ना मुझसे कि मैं आगे जाकर किसी और को क्षमा कर दूं, जो मुझे चोट, मुझे दुख पहुंचाया, मेरे को गाली गलौज किया, मेरा विरोध किया, उसको मैं क्षमा कर दूं, मुझको मैं क्षमा कर दूं ना। देखो ना, बाइबल में लिखा है कैसे स्टीफनस भी, उसको तो पत्थर से मार डाला ना, उसको सॉल और पूरी टोली ने वो पत्थर मार मार के उसकी जान निकाल दी, पर ये क्या बोलता है ना, ये अपराध और पाप इन पर तू मत लगा। ये है ना ईश्वरीय स्वभाव, ये ना ईश्वरीय स्वभाव। इसके लिए यीशु मसीह ने जब मुर्दों से जी उठा था, उसने पवित्र आत्मा फूका और कहा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे, जिसके पाप तुम रखोगे वो रख दिए जाएंगे ना। इसलिए प्रभु को पवित्र आत्मा फूकना पड़ा, क्योंकि आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपको क्षमा करने की सामर्थ मिलेगी। मनुष्य के सामर्थ में नहीं कर सकते। मनुष्य की सामर्थ में क्षमा करेंगे ना तो आप थक जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। कितने बार क्षमा करूं, 7 गुना काफ़ी है। ये तो मनुष्य का स्वभाव है। ईश्वरीय स्वभाव 70 टाइम्स 7, क्षमा करते जाओ, क्षमा करते जाओ ना। ये दृष्टांत कुछ बोल रहा है, हमको कुछ सिखा रहा है ना। ये ऑफिसर के इतना बड़ा कर्ज क्षमा कर दिया, पर इसने जाकर दूसरे नौकर का कर्ज नहीं क्षमा। देखा जाएगा तो दूसरे नौकर ने भी एग्जैक्टली वही किया जो पहले वाले ऑफिसर ने राजा के सामने में किया ना। ही बेग्ड फॉर हिज मर्सी, प्लीज दया कर दे, क्षमा कर दे, मैं सब कुछ लुटा दूंगा। परंतु यह ऑफिसर ना, उसके हाथ पैर बांधो, उसको जेल में बंद कर दो ना, उसने माफ नहीं किया। जब राजा को पता चला ना, मत्ती 18 चैप्टर उसका 32 और 33 कलम पढ़ देंगे। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। जब वो राजा को पता चला कि ये मेरे ऑफिसर ने इतना गलत काम किया, उसने उसको बुलाकर ये कहता है, ओ दाउ विकेड सर्वेंट, आई फॉरगिव दी ऑल दैट डेट बिकॉज दाउ डिजायरस मी। वर्स 33 में कहता है ना, सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। मतलब वो राजा ये एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि इतनी क्षमा मैंने किया हूं, ये जाकर अगले को क्षमा कर दे ना। वहां पर लिखा है, जैसा मैंने तुझ पर तरस खाई, तरस वर्ड ना, एक वर्ड, एक तो क्षमा ईश्वरीय कैरेक्टरिस्टिक्स है, और एक तरस कंपैशन
मर्सी, दया मैंने दिखाई तुझ पर, क्या तूने दूसरों पर दया, कंपैशन, मर्सी नहीं दिखाना था? ये दोनों एट्रीब्यूट्स बहुत डिवाइनली एट्रीब्यूट्स है, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस ना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपके पास कंपैशन नहीं है तो आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कंपैशन वो ट्री है और फॉरगिवनेस वो फ्रूट्स है ना, वो फल है। इसलिए कंपैशन तरस से, बिकॉज गॉड हमारा तरस से भरा हुआ है। इफिशियंस 2:4 में वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी, रिच इन लव, अपने उस बड़े प्रेम के कारण ना, जैसे उसने हम पर प्रेम किया है। माई गॉड इज रिच इन मर्सी, रिच इन मर्सी। 2 Corinthians chapter 1:3 कहता है, हिंदी में पढ़ देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो दया का पिता है, दया का पिता है। ही इज द फादर ऑफ मर्सी, ही इज रिच इन मर्सी ना, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट है। साम्स 86 और 15 भी कहता है, पढ़ देंगे हिंदी में। परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलम्ब करता है ना, और बहुत करुणामय है। ये ईश्वरीय स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव। आप पवित्र आत्मा से भरे हैं तो आपके अंदर भी ये स्वभाव दिखेगा। आप दया के धनी हैं ना, आप विलम्ब से कोप करते हैं, आप करुणामय है ना, आप बहुत क्षमा करते हैं अगले को ना। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, कंपैशन, तरस से भर जाना ना। तरस क्या करता है? अगले की दुख और पीड़ा को गहरी चिंता के साथ में उसके साथ व्यवहार करता है, अगले की दुख को दूर करने का प्रयास करता है। कंपैशन, तरस को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट मत कर देना ना। आप आई एम सॉरी, बेचारा बहुत बुरा हुआ। आजकल देखा ना आप लोग, व्हाट्सएप में कई बार आया, कोई रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो दे मोबाइल फ़ोन उतार करके सब फोटोग्राफ लेकर के अपने दोस्त यार, पर किया कुछ नहीं ना उसके लिए, देखते ही रह गए। आजकल दुनिया का स्वभाव देखेंगे ना तो बहुत वो स्वार्थी बन गया ना। देखिएगा, जो कंपैशन वर्ड है इसका एक एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड कहता है उदासीनता ना, या चिंता की कमी, लैक ऑफ कंसर्न। जिस व्यक्ति में कंपैशन नहीं है वो क्या बोलता है ना, अरे उसके साथ जो हो रहा होने दो ना, मेरे को क्या करना, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ना, उसका प्रॉब्लम उसको देखना है, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है देखने के लिए। ये एक व्यक्ति जिसके पास में कंपैशन नहीं है, ये तो दुनिया का स्वभाव है, बिलीवर्स का स्वभाव नहीं है ना। बिलीवर्स का स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव ना, जो पौलुस ने कहा गलती 6 चैप्टर में और 1 कलम में भी कहता है। हिंदी में पढ़ देंगे 1 और 2 कलम। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यस ना, पौलुस कहता है, हे भाइयों, जो अपराध में पकड़ा भी गया हो तो बड़े नम्रता के साथ ऐसे को संभाल लो ना, अपनी चौकसी करते हुए कि हम भी उस परीक्षा में ना गिर जाए। तो ऐसे को संभालना है जो परीक्षा में पकड़ जाए ना, कोई समस्या आ जाए ना। और उसका दूसरा कलम में भी जो लिखा है, एक दूसरों के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। भार उठाओ का मतलब जो होता है वैसा है जैसे कि कंधा लगा दो, उस बोझ को उठाने के लिए आप भी सहमत हो जाए ना। जैसे कि जब फ्यूनरल प्रोसेशन जाता है ना, कुछ लोग कंधा लगाते ना, क्योंकि वो आदमी तो मरा है, अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, अपना डेड बॉडी भी उठाए गड्ढे भी नहीं डाल सकता, तो पर बाकी लोग हैं ना जो कंधा लगा देते हैं ना। उसी रीति से ना बाइबल बता रही है ना, एक दूसरों का भार उठाओ मतलब कंधा लगाओ, और इसके द्वारा मसीह की व्यवस्था को आप पूरा कर देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग तकलीफ में है ना, कोई लोग परेशानी में है,
किसी के पास में रोटी खाने को नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास में ना परिवार उजड़ गया हो, उसको हम लोग सहायता करने पाए। ये क्रिश्चियन स्पिरिट है, ये क्राइस्ट की स्पिरिट है। मेरा प्रभु तरस से भर गया है ना। सो इसलिए इंडिफरेंस वाली आत्मा ना, जो दूसरों की चिंता नहीं करता, ये तो दुनिया की आत्मा हो गई ना। एक ऑपोजिट ऑफ द वर्ड कंपैशन का ऑपोजिट होता सेल्फ सेंटर्डनेस, या स्वयं की चिंता, या स्वार्थी व्यक्ति हो गया। बस मैं और मेरा घराना, दूसरों के भैया मेरे को मत बोझ डालना, वो खुद को अपना संभालेंगे ना। नहीं, जो तरस से भर जाता है ना, अपनी चिंता छोड़ करके दूसरों की चिंता करता है। जैसे कि यीशु मसीह ने भले समरी का दृष्टांत भी बताया था, इंटेंशनल था ना। उस व्यक्ति को अधमुआ छोड़ दिया था चोर डाकू लुटेरे ने, और वहाँ से याजक भी गया और एक लेवी भी गया। ये दोनों रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं और कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ आहा बेचारा सॉरी बोलकर निकल गए होंगे। पर जो समैरिटन वहाँ से गुजर गया, उसने देखा ये अधमुआ पड़ा है, वहाँ वर्ड लिखा है वो तरस से भर गया। जब आप तरस से भर जाते, कुछ एक्शन होता है आपके अंदर में ना। आप उसकी सहायता को करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयास करते हैं। और ये समरी उतर रहा, दाखरस और तेल उंडेल दिया, उसको अपने गद्दी पर बिठाया, खुद पैदल चला गया, सराय में जाके दाखिल कर दिया। उसको 2 दिनार भी वहाँ पर दे देता है, देखभाल उसका कर देना वहाँ पर ना, और वापस आऊँगा तो मैं दे दूंगा ना। ये व्यक्ति जो है तरस से भर गया। और यीशु मसीह भी बाइबल में कितने बार लिखा है वो तरस से भर जाता था। नैन में वो विधवा का एकलौता बेटा मर गया। उसने पूछा किसका बेटा? लोगों ने कहा विधवा का एकलौता बेटा ना। उसने जाकर उस माँ से कहा मत रो, वीप नॉट ना। और फिर जाकर मुर्दे को भी जीवित। जब जब यीशु तरस से भर जाता, कुछ एक्शन हो जाता है। आपके अंदर में भी ख्रीस्त की आत्मा है, वो आपके अंदर में प्रोत्साहित करेगी, कुछ करना चाहिए अपन ने ना। और वो कंपैशन हमारे अंदर में उठता है और हम अगले की सहायता करते। पौलुस ने कहा, कलोसी 3 चैप्टर और 12 कलम में है, पढ़ देंगे हिंदी में। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यस ना, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। पुट ऑन देयरफॉर, कुछ पहनना है हमको ना, कुछ पहनना है, कंपैशन को पहनना है। इसको पहनने के लिए आपको सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थीपन, आपका इनडिफरेंस एटीट्यूड, दूसरों की चिंता ना करना, इसको उतार के फेंक देना पड़ेगा। तभी आप जाकर वो कंपैशन के वस्त्र को आप पहन सकेंगे ना। आज की दुनिया को बहुत ज़रूरत है कि कोई उसके आंसू को पोंछे, उसकी सहायता करे। देखा जाएगा तो हम सभी के पास कुछ भी नहीं है। हम सभी के पास में कम पड़ जाता अपने ही देखभाल करने के लिए। पर प्रभु का वचन कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर तुम्हें दिया जाएगा ना। बाइबल में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था अय्यूब, जोब, और कहते हैं ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन दोज डेज उसके वर्ल्ड में ना। और जोब चैप्टर 29 वर्सेस 12 to 16 हम हिंदी में पढ़ेंगे और ध्यान से आप सुनिएगा। अय्यूब 29 12 से 16। क्योंकि मैं दोहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था, और जो नाश होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आँखें और लंगड़ों के लिए पाँव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ कर जान लेता था। यस ना, ये रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड बोल रहा है उन दिनों का ना। कहता है बिकॉज आई डिलीवर्ड द पुअर दैट क्राइड एंड द फादरलेस एंड हिम दैट हैड नन टू हेल्प। अनाथों की सुधि मैंने लिया, जिसके पास कोई नहीं था उनकी मैं सहायता करता था ना। और कैसे जो नाश होने वाले थे उनकी दुआ मुझ पर लग गई है। कैसे विधवाओं को मैं उनके हृदय में आनंद लेकर के आता था ना। ये अय्यूब का जीवन था।
इसलिए वर्स 14 में भी कहता है ना, आई पुट ऑन राइचियसनेस एंड इट वॉज क्लोथ मी, माई जजमेंट वॉज एज अ रोब एंड अ डायड, आई वॉज आईज टू द ब्लाइंड and feet was I to the lame. I was a father to the poor, and the cause of which I knew not I searched out. ये इसका जीवन था, ये इसका जीवन था ना। इसको देखकर परमेश्वर ने कितना इसको ब्लेस किया और आगे बढ़ा, बिकॉज हर समय ये तरस से भरा, दया करता, दूसरों की सहायता करते जाता था। ये तो अय्यूब को इसको सीख लिया, इस जीवन में एक हैप्पी लाइफ कैसे लीड करेंगे, एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे लीड करेंगे ना, और वो दूसरों की सहायता करने के द्वारा। हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे अंदर में ईश्वरीय स्वभाव है, हमारे में परमेश्वर की आत्मा है, ये हाथ परमेश्वर के हाथ है। वी रिप्रेजेंट हेवन हियर ऑन अर्थ। इसलिए फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, ये दोनों एक ग्रेट एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड आज आपके अंदर दिया गया और मेरे अंदर भी दिया गया ना। एक चुनौती होगी हमको ना क्षमा करने के लिए और तरस दिखाने के लिए, परंतु हम ईश्वरीय स्वभाव को ही हम धारण करेंगे ना। इसलिए बाइबल भी कहती है, जब हम लोग प्रभु प्रार्थना बोलते हैं ना, मैथ्यू चैप्टर 6 में वर्स 12 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये तो भैया हम फंस गए ये प्रार्थना बोलकर। जिस रीति से हमने क्षमा किया वैसे ही तू हमें भी क्षमा कर। और लास्ट में क्लोजिंग में ये वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, मैथ्यू 18 एंड वर्स 35। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाइयों को मन से क्षमा न करोगे, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें भी वैसा ही करेगा। सो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम क्षमा के भूखे हैं ना, कि परमेश्वर मेरे पापों अपराधों को क्षमा कर। और ये डिपेंड हो रहा है मैं अगले को कितना क्षमा करता हूँ। अगले जो मुझको हर्ट किया है, मुझे बुरा बोला है ना, मेरा बुरा चाहा है, पर मैं आगे बढ़कर उसको क्षमा कर देता हूँ। मेरी आज प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आज आपको नया सामर्थ्य दे क्षमा करने के लिए, क्षमा करने। और ऐसा करेंगे तो आप ईश्वरीय स्वभाव को पहन लेते। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, तूने ये चाहा कि हम ईश्वरीय स्वभाव को धारण करें प्रभु जी। प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, ये मनुष्य का स्वभाव, ये दुनियादारी वाली बातों को हम उतार डाले प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को आज एक नया बल दे प्रभु, नई सामर्थ दे पिता, दुनियादारी वाले स्वभाव को उतारने का सामर्थ दे सबसे प्रथम प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी ईश्वरीय स्वभाव पहनने का सामर्थ है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर मांगता हूँ पिता, कि आगे बढ़ करके प्रभु अपने सताने वालों को, विरोध करने वालों को वो दिल से क्षमा कर सके पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा शायद आपको किसी का नाम बता रहा होगा, किसी का चेहरा बता रहा होगा, आप आगे बढ़ करके उसको क्षमा करने पाए, दिल से माफ़ करने पाए। छोड़ दो उसको, जाने दो उसको ना, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर आपको आशीष देगा पिता। मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब आगे वो बढ़ते हैं क्षमा करने के लिए प्रभु, और ईश्वरीय स्वभाव को प्रकट करने के लिए प्रभु, तो उनको अपनी आशीष से भर दे पिता। उनके घर परिवार बच्चों पर आशीष का हाथ हो पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते, आपने हमको पापों की क्षमा दिया है प्रभु, हमारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तकों में लिख दिया है प्रभु। इतना बड़ा कर्ज मिटा के रख दिया पिता, ये तो कुछ भी नहीं है पिता। प्रभु हर एक के साथ हो, रक्षा कर प्रभु। और जिन लोगों ने अभी तक तुझे ग्रहण नहीं किया पिता, उनके भी दिल से तू बोल और बातचीत कर पिता प्रभु, ताकि वो भी अपना विश्वास को जाहिर करेंगे यीशु मसीह के ऊपर में। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, उस पर विश्वास करेंगे पिता। प्रभु हर एक को वो सामर्थ्य दे पिता। उनकी प्रार्थना तो सुन, प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करेंगे। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य आज से लेकर मसीह यीशु आने तक हर एक मसीह भाई बहन के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।